Hello students, I hope you all are fine. So again I am here with a new video. Today our topic is Henry's Law. This is the topic of Unit 1st class 12th. What do you mean by the Henry Law? This is known as Henry Law because this law is given by the Henry. Students, according to this law, mass of a gas dissolved in given liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure applied on that. मीन्स किसी भी लिक्विड में, किसी भी सॉल्वेंट में गैस का कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो डिपेंड करेगा कि हमने गैस के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रखा है. एंड दिस इज द हेनरी लॉ. वी कैन सी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टूडेंट. Here mass of gas is directly proportional to the pressure applied on it. So M is equal to Kp. Here this K, here M is the mass of the gas, P is the pressure applied on it, and K is the constant of the proportionality. K क्या है यहाँ पर? Constant of proportionality. And students, this value of this K depends on the nature of gas. And value of K also depend on nature of the solvent. And it also depend on the temperature. सो यहाँ पर ये कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी कि गैस का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, एंड हमने कितना टेम्परेचर अप्लाई कर रखा है. स्टूडेंट्स, इन फॉर्म ऑफ द सोल्यूबिलिटी आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द हेनरी लॉ इन अदर वे. आइदर वी कैन से मास, किसी भी गैस का कितना मास डिसॉल्व होगा किसी पर्टिकुलर लिक्विड में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर लगाए गए प्रेशर पर. सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. या फिर मैं ये कहूं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस in liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure applied on it. या फिर मैं ये कहूं कि कोई भी गैस लिक्विड में कितनी सोल्यूबल है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो डिपेंड करेगा कि हमने गैस के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रखा है. एंड स्टूडेंट, आई विल टेक सोल्यूबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन. ओके, सोल्यूबिलिटी को यहाँ पर हम किसकी फॉर्म में लेंगे? मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में. यू नो वेरी वेल, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय द X. So here X is directly proportional to the pressure again. Here mole fraction of a gas dissolved in liquid is directly proportional to the partial pressure of it. Okay, so X is equal to, I can take constant of proportionality K dash P. Okay student, from here partial pressure of gas is equal to the, take this K in opposite direction, इसको इस साइड में लेंगे तो 1 by K dash X, और 1 by K dash को मैं क्या लिख सकती हूँ? KH.
मैं 1/k' को क्या लिख रही हूं, KH। सो फ्रॉम हेयर यहां से होगा क्या, P इज इक्वल टू KHX। So in term of the solubility, this is the expression, mathematical expression for the Henry law. Solubility के terms में हम हेनरी लॉ को इस टाइप से दिखाएंगे। Here KH, what is the KH here? Here KH is the constant of proportionality or Henry constant. It is also known as the Henry constant. P is the partial pressure of the gas. X is the mole fraction, okay, which shows the solubility. Okay students, so value of this KH, Henry constant value, first one expression was mass directly proportional to pressure, or according to the second one, so pressure directly proportional to the solubility, so P is equal to KHX। ये अभी अभी हमने डिराइव किया है। So student, from here this KH, it is known as the Henry constant. Value of Henry constant depends on the nature of gas. ये डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी गैस को डिसॉल्व करना है, ये गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द सोल्यूबिलिटी, ये सोल्यूबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा। स्टूडेंट आप यहां से देख सकते हैं, हेयर एक्स किसको दिखा रहा है यहाँ पे, सोल्यूबिलिटी को। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं वैल्यू ऑफ KH, तो क्या होगा, KH इज इक्वल टू द P/X। ओके, सो KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो वैल्यू ऑफ KH है वो क्या होती है, सोल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम सोल्यूबिलिटी KH की वैल्यू बढ़ेगी, अगर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, घटेगी, इट विल डिक्रीज, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो इफ solubility will increases, then value of KH will decreases. And in previous video we have seen the topic solubility of gas in liquid. Previous video में हमने पढ़ा solubility of gas in liquid किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो वहां पर हमने एक फैक्टर पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट गैसेस के लिए सोल्यूबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, घटेगी। ओके स्टूडेंट, तो यहां से सोल्यूबिलिटी एंड टेम्परेचर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहां से मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या कह सकती हूँ कि जो वैल्यू ऑफ KH है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के, और टेम्परेचर भी सोल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। सो वैल्यू ऑफ KH ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ KH भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, सो ये तीन फैक्टर्स हैं जो इस हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पर। सेकंड वन, ये डिपेंड करेगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस पर। सोल्यूबिलिटी एंड KH दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर हम सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी मींस वैल्यू ऑफ KH क्या होगी, घटेगी। और टेम्परेचर एंड वैल्यू ऑफ KH ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यू ऑफ KH भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी।
Student, now we can draw the graph. From here, you can see this shows the equation of the straight line. It follows this equation: y is equal to mx. Okay, and y is equal to mx. This is the equation of the straight line. This is the equation of the straight line. So student, we will draw a graph. दिस इज वाई एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस. सो एट वाई एक्सिस कंपेयर बोथ ऑफ दिस. वाई एट वाई हम क्या लेंगे P प्रेशर. ओके, सो टेक वाई, टेक प्रेशर एट वाई एक्सिस. ओके, एंड हेयर m इज द स्लोप. और अगर हम कंपेयर करेंगे तो दिस के एच, दिस इज द स्लोप. ओके, एंड एट एक्स एक्सिस वी विल टेक द एक्स. हियर एक्स इज मोल फ्रैक्शन, तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे मोल फ्रैक्शन. सोल्यूबिलिटी. ओके, तो ये किस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो ग्राफ हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा. यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम कहां से लेंगे ओरिजिन से. हमारा स्लोप क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या होगी यहाँ पे ग्राफ हमारा क्या आएगा इन इंक्रीजिंग वे. सो लाइक दिस वी विल गेट द ग्राफ एंड दिस विल बी द स्लोप KH. ओके स्टूडेंट्स, सो हेनरी लॉ के लिए हमारा जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का. वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे प्रेशर को लेंगे. एट एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे सोल्यूबिलिटी को लेंगे. ओके, ये KH हमारा क्या है स्लोप. और ये किसको फॉलो कर रहा है y इज इक्वल टू mx को. y इज इक्वल टू mx, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. तो हमारा ग्राफ भी क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो कैसा है पॉजिटिव, तो जिससे हमारी जो लाइन है वो किस में बनेगी, वो पॉजिटिव डेविएट बनेगी, मींस इंक्रीजिंग वे में बनेगी. सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर द हेनरी लॉ. आई होप इट इज क्लियर टू यू. But students, Henry's law had some limitations. कुछ limitations हैं Henry's law की भी. So what are the limitations? First of all, it is not applicable at टू हाई प्रेशर. अगर हमारा एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा अगर प्रेशर होगा तो ये लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. और अगर टेम्परेचर हमारा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर अगर हम लेंगे तो तब भी ये लॉ फॉलो नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द गैसेज इफ दे रिएक्ट विद सॉल्वेंट. मीन्स अगर किसी रिएक्शन में एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होता है तो उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट. ओके स्टूडेंट्स, लाइक यू कैन टेक अमोनिया प्लस वाटर, दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनिया और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, बट ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है it undergoes dissociation.
डिसोसिएशन, ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है ये इनटू द आयंस, आयंस में टूट जाता है। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सच टाइप ऑफ द सॉल्वेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारी लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की, कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो फिर भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गैस क्या एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करती है तो तब भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, so this is all about the Henry law. We can see some application also. Students, आप देखते हैं कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं लाइक ड्यू, कोक, लिम्का, ओके, तो उन पे हम अगर उनको ओपन करते हैं तो एक आवाज प्रोड्यूस होती है। वो क्यों? क्योंकि हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ओके, और हम क्या करते हैं, उसको अंडर हाई प्रेशर हम सील करते हैं, बोतल को हम क्या करते हैं, अंडर हाई प्रेशर सील करते हैं। ओके, तो ये भाई, और जब हम बार बार में कई बार अगर हमारी बोतल ओपन हो जाती है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जो अमाउंट ऑफ प्रेशर कम करने से गैस का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये किसकी एप्लीकेशन है? ये एप्लीकेशन हमारी हेनरी लॉ की ही एप्लीकेशन है। जब कभी हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड में, हमारे अदर टिश्यूज में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, और हम एनोक्सिया जैसी डिजीज से सफर करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, जैसे स्कूबा डाइवर्स हैं, ओके, तो वो भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर, जो वाटर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन गैस अपने अंदर फिल कर लेते हैं, मीन्स उसको इंजेक्ट करते हैं। बट जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर हमारी बॉडी से रिलीज होता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए वो साथ में हीलियम गैस, ओके, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिक्सचर भी क्या करते हैं, अपने साथ में वो लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सम एप्लीकेशंस। So student, I hope this topic is clear to you. So thank you. Have a nice day.